Hello students, in previous video we have started the revision of chapter 10, that is water pollution, and we have revised that rain when just formed is the purest form of water, but as it reaches the surface of earth it usually becomes impure. Why? This is because it dissolves not only some harmful gases but present in the air, but also has dust and smoke particles and germs present getting mixed in it, तो उसमें वो mix हो जाते हैं. And next is what is polluted water. So water containing impurities is called polluted water. Very important. Water containing impurities is called polluted water. And then we have revised about the causes of water pollution. There are many human activities which increases water pollution. So we have revised those activities, that is people wash their clothes and bath in river water, and some people bath their cattle in rivers, and people throw domestic waste in the river, and waste materials and harmful chemicals from factories are often dumped in the river water. And solid waste materials from power plants may be thrown into the river water. And water from drains and sewage goes into rivers. And farmers use chemical fertilizers and pesticides, which flows into lakes and rivers after getting mixed with rainwater. And oil spilled by tankers and oil wells pollutes seawater. So these are some human activities which increase water pollution. Now let us revise the effects of water pollution. So water pollution has many harmful effects, and some of the harmful effects of water pollution are listed here. First is poisonous chemicals from factories kill marine animals. So poisonous chemicals तो जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो किसी को भी हार्म पहुंचाएंगे. अगर हमारे अंदर चले जाएं तो वो हमको भी हार्म पहुंचाएंगे. तो फिर मेराइन एनिमल्स जो हैं, बिकॉज इट मिक्स इन द वाटर, जब वो रिवर्स के थ्रू आपके रिवर्स में चले जाते हैं उसमें हम फेंक देते हैं हार्मफुल केमिकल्स को, राइट, ऑफन डम्प्ड इन द रिवर और रिवर वाटर. सो ये पॉइजनस केमिकल्स की वजह से बहुत सारे मेराइन एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से और एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उनसे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं वाटर में अननेसेसरी, एंड उससे क्या होता है, दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इससे ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए होता है, बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, और उनकी लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल वाटर में होता है वो पहले ही कम होता है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये और कम हो जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है. सो एंड these are this is the answer of I think one question also. So this can reduce the supply of oxygen for the aquatic animals. So industrial and agriculture waste से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स फॉर्म अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो जो यू कैन सी हियर, जो टैंक्स, जो ये टैंकर्स होते हैं, इससे जब ऑयल निकलता है, गिरता है वाटर में, सो दैट ऑयल फॉर्म्स अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वाटर के सरफेस में के ऊपर एक कवर बना देता है, बिकॉज ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ये वाटर में डिजॉल्व और मिक्स घुलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये ऊपर ही लेयर बना देता है वाटर के सरफेस पे, एंड जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए वो कट हो जाती है, रुक जाती है, राइट. So this cuts off the supply of oxygen to the animals living under water. तो जब वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो what will happen? They will die.
because you know that all the living organisms need oxygen to live, whether human beings or animals. सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑयल है वो एक कवर बना लेता है वाटर के ऊपर, और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वाटर में वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज aquatic plants and animals get infected by polluted water. So polluted water की वजह से उनमें infection हो जाता है, and when other animals eat these infected animals or plant, they also become sick. और जब इन infected animals को दूसरे animals खाते हैं, then what will happen? वो भी बीमार पड़ जाते हैं. Some people use river or pond water for drinking. So we have learned that people take water from rivers, ponds, wells, by hand pumps, and जो भी sources हैं water के उनसे लेते हैं water, और they use it for drinking also. पीने के लिए भी use करते हैं. And drinking polluted water may cause diseases like typhoid, diarrhea, cholera, and jaundice. So जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको ड्रिंक करने से ये डिजीज हैं वो हो सकती है. एंड व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, अगर इरिगेट करने के लिए हम उसको यूज करेंगे पॉल्यूटेड वाटर का, व्हाट विल हैपन? द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट रिड्यूस्ड एंड क्रॉप्स कैन गेट डैमेज. जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी और क्रॉप्स भी डैमेज हो सकते हैं. एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बुक में गिवन है. सो इनको, इन जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे होने से रोक सकते हैं. राइट. सो मीनवाइल आप जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स, MCQs, इनको आप लर्न करेंगे और सारे चैप्टर्स के, बिकॉज यू नो ये आपके ऑलमोस्ट जो 50% मार्क्स हैं आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में वो इनमें से होंगे. सो ये आपको अच्छे से आने चाहिए. सो रिवाइज दैम प्रॉपरली, लर्न दैम ऑल द फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स एंड MCQs, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी आपने सब लर्न करने हैं. थैंक यू.